ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਭੁਜੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਟ ਨਾਲੇ ਸੋਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਹੈ, ਕਟਿਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ। ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾਦਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਤਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨੀ ਬਹਿਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇ ਸਤਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨੌ ਬਰਨੌ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
सतगुरु ने गुरबाणी च ख्याल देंदे वचन फरमाए कि मनुखी जामे दे अंदर जो प्रभु भगती करने वाला मनुख है, संसार दे अंदर वो भी सोहना है ते उस मनुख दा आया होया इस संसार ते सुहापण वाला है। बाकी दुनिया आउंदी है जांदी है, संसार ऐसा चलो चली दा मेला है। पर सतगुरु कहते ने संसार ते आया होया उस मनुख दा सफला है जेड़ा मनुख वाहिगुरु दा सिमरन करदा है, गुरु की याद विच जुड़दा है। हजूर ने गुरबाणी च ऐसा ख्याल भी दिता ते वचन फरमाए कि आया सफल ताहू कौ गणिए, जास रसन हर हर जस पनिए। आउणा आया सफला उस मनुख दा है जिहड़ा रसना नाल प्रभु दी याद भी जुड़दा है ते परमेश्वर दा जस कथन करदा है। उस मनुख नूं मेरे सतगुरां ने कहा धनता दे योग है, धन है। इन्नी सृष्टि जमदी है, इन्ने लोग संसार ते आउंदे ने तुर जांदे ने, सतगुरां ने किसी नूं धन नहीं आखिया। धन तां वो मनुख है जिहड़ा संसार ते आया ते प्रभु दी याद च जुड़ गया है। सतगुरां ने गुरबाणी च ख्याल दिता, कहण लगे धन 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 जाने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआवन, जन कै संग चित आवे नाव। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ये भी वचन कह भी उस मनुख नूं जन्म देने वाली मां भी धनता दे योग है। नानक जननी धनी माए, तिन धन जानेंदी माओ आए सफल सेठ। वो कोल भी सतगुरु कहणगे धन है जिस कोल जी जम्मिया होया मनुख प्रभु का सिमरन करता है, भाव भगती करता है, प्रभु की याद भी जुड़ता है ते सिमरन करता है। सिमरन वास्ते सतगुरां नूं बेनती करके कदे पुछ लईए कि जिंदगी विच वो किहड़ा समा है जिस समय मनुख ने प्रभु की याद विच जुड़ना है। किसी बच्चे नूं आखो कि प्रभु का सिमरन कर, वो कहेगा मैं वड्डा होके करांगा। वड्डे नूं कहो तो कहंदा हुण खाण पीण दा वेला बुढ़े होके करांगे। किसी बजुर्ग नाल गल करो तो कहंदा हुण गां ही ठीक है जी, सो समा गां ही जो है, कोई भी उस बने आउण नूं तैयार नहीं। पर सतगुरु कहंदे ने जे सतगुरां नूं पुछिए भी वो किहड़ा समा जिंदगी दा है ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ अंदर प्रभु का सिमरन किया जाए, प्रभु की भगती की जाए। सतगुरु गरीब नवाज गुरबाणी ख्याल देंदे ने और भगत रसना द्वारा ऐसा वचन फरमाया कि प्यारिया जिंदगी का समा वो लेखे विच है जे तू बचपन में ही प्रभु की याद विच जुड़ना शुरू कर देवें। बचपन ही गुरु दे लेखे ला देवे, तेरी जवानी भी गुरु दे लेखे, तेरा बुढ़ापा भी गुरु दे लेखे लग जावे। सतगुरां ने प्रमाण दिते भगत रसना द्वारा। जे साडे कोल पुछदे हो कि प्रभु की भगती किस उम्र च करनी चाहिए है, तो सतगुरु ख्याल देंदे ने भगत कबीर साहब द्वारा, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जिवें ध्रुव ने प्रभु की भगती की है, प्रहलाद ने प्रभु की भगती की है, उन्हां दो छोटी छोटी बाल अवस्था के महापुरखों का जिक्र सतगुरां ने किया है। जे बंदगी करनी है फिर ध्रुव 5 साल का बच्चा है, जिस बारे सतगुरां ने गुरबाणी च भी दसिया है। 5 बारक को अनाथ ध्रुव बारक, हर सिमरत अमर अटारे। 5 साल का पुत्र ध्रुव वाहिगुरु की याद जुड़िया, प्रभु का भगत बन गया। अज सारे ब्रह्मांड के तारे उस ध्रुव तारे दियां परिक्रमा करते हैं। अटल पदवी उस महापुरख नूं प्राप्त हुई है। प्रभु भगती विच जुड़न वाले नूं सत्कार ते मान मिले है। दूसरे भगत का प्रहलाद का जिक्र किया है। जिस प्रहलाद भगत का पिता राजा हरनाकश बड़ा जालम बादशाह है,
अत्याचार करता है, नहीं चाहता कि मेरे घर जम्मिया होया पुत्र वो राम राम कवे, नहीं कहता जले हर नाग भी थले हर नाग चुकाओ कि मैं ही रब हाँ। और पुत्र कहते नहीं पिताजी वो वाहिगुरु निरंकार राम परमेश्वर जो है वो ही सब का मालक है ते सब ते कृपा करनहारा है। लेकिन हरनाक्ष जो बहुते अत्याचार से तुलिया तो परमेश्वर नरसिंह स्वरूप धार के उसका खात्मा किया, अपने प्रहलाद भगत की सहायता की। 5.5 साल का बच्चा प्रहलाद प्रभु भगती जुड़िया, वाहिगुरु की बंदगी जुड़ गया। सो इस करके सतगुरु कहते हैं बचपन में ही परमेश्वर की याद जुड़ जाने वाला वो संसार के अंदर पूजनीक है, वो भगत है, वो संत है, वो महात्मा है, वो प्रभु का जन सेवक है, जिन्हें बचपन ही गुरु के लेखे ला दिता है। और कई बार मनुख सारी जिंदगी प्रभु का सिमरन ने बचपन भी बतीत हो गया, जवानी भी बर्बाद हो गई, बुढ़ेपा आ गया। लेकिन शेख शादी जी ने एक बड़ी सुंदर गाथा का जिक्र किया है। वो कहते एक बार बुढ़ा बघियाड़ वो घुरने तो बाहर निकल के बैठा होया है ते ओहदे मूँह च दंद कोई नहीं, कोई लत्तां तो तुरिया नहीं जाता है। बुढ़ा बघियाड़ घुरने तो बाहर बैठा है। उस समय कहते ने वो भेडां आजड़ी लैके गिर जा रहा सी भेडां दा। एक भेड़ ने सामने वाली ने वेखिया बघियाड़ बाहर बैठा है। वो भेड़ पिछे नूं भजी, उहदे भजण नाल बाकी दीआं भेडां भी चल पईआं। और भेड़ चाल बड़ी संसार के अंदर मशहूर है। विद्वानां ने जिक्र किया कि संसार की भेड़ चाल भी उस तरह की है। जगत की भेड़ा चाल चलते के पाछे चलै, परमार्थ न सकै संभाल, देखो जगत की मूढ़ता। एक भेड़ सियाणे कहने खूह सिड़ दो, बाकी सारियां डिग पैंदियां ने। ऐसी संसार की हालत है। एक भेड़ ने बुढ़ा बघियाड़ वेखिया, बाकी भेडां भी सारियां भज निकलियां। भेडां चार वाला आजड़ी भी दौड़ पिया। कहते भजदियां भेडां वेख के बघियाड़ ने आवाज़ दी, भेडो भेडो लग जाओ, अजकल मैं मांस खाना छड्डिया होया है। शेख शादी कहते झूठ बोलता है, अजे भी झूठ बोलता, उस असलीयत को लुकाउणा चाहुंदा है। जो मूँह च दंद कोई नहीं, लत्तां तो तुरिया नहीं जाता, भेड़ भज के फड़ी नहीं जा सकती, जे फड़ ली तो खाधी नहीं जा सकती, फिर भी कहता अजकल मैं मांस खाना छड्डिया होया है। शेख शादी कहते दुनिया च ऐसे मनुख तुहानूं रोज़ मिल जाणगे जिन्हां ने बचपना तो गवाया, जवानी भी गवा ली, बुढ़ेपा आया सी। हुण जदों परिवार आखे न लगा, घर की विपता के मारे हुए कहते हैं हुण तां जी नितनेम ही करीदा, हुण तां जी माला ही फेरदे हैं, गुरद्वारे ही रहीदा। कहते चंगा हुंदा जे बचपन में ही तेन गुरद्वारा याद आ जाता, जवानी में गुरद्वारा याद आ जाता। हुण कहते कोई ऐब नहीं करता जी, मैं तो कोई कदे गुनाह नहीं किया। कहते ये भी झूठ बोलता। दर हकीकत मनुख गुनाह नहीं छड्डदा, गुनाह ही मनुख नूं छड्ड जांदे ने। जिन्हां अखां नाल कदे बगाने रूप तकदा सी, अज अखां वेखण तो जवाब दे गईयां, चौड़ा पैंदा है, निगाह कमज़ोर हो गई, अखां चों पानी वगदा रहिंदा है। नैनों नीर बहे तन खीना, बहे केस दुध वाने, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या कर है पराने। फिर मनुख कहता मैं तो हुण कोई ऐब नहीं करता, किते जांदा आउंदा नहीं। विद्वान कहते ने जाना भी तू कित्थे, लत्तां तो दोनों आतर हो गए, हुण तू जावेगा तो कित्थे जावेगा। जदों जाण दा समा सी उदों तू टिकिया भी नहीं, उदों तू बैठा भी नहीं। ऐसी हालत है। कहते फिर भी मनुख झूठ बोलता है, मैं गुनाह छड्ड दित्ते ने। दर हकीकत गुनाह ही मनुख नूं छड्ड जांदे ने, तेरे पल्ले हुण कुछ भी नहीं रहा। शेख शादी कहते हैं दर जवानी तोबा करदन शावाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरब जालन नेश्वरी परहेजदार। जिस मनुख ने जवानी विच परहेज कर लिया, बचपना गुरु के लेखे ला लिया, जवानी गुरु के लेखे ला लई, सच जाणियो दुनिया चो महापुरख है, वो सत्कार योग है। इस करके ये बचपना गुरु के लेखे लाउण वालियां नूं सत्कार, जिन्हां ने जवानी गुरु के लेखे लाई उन्हां दा भी सत्कार।
सो संसार के अंदर उन्हों की पूजा है जिन्हों ने धर्म अर्थ गुरु अर्थ कोई संसार के अंदर जस कटिया है। बेनती कर रहे असा गुरमुख प्यारे परिवार ने अपने गृह विखे सतसंगत रूप आप जुड़ मिल के बैठे हैं। सतगुरु कहते हैं किसी भाई गुरदास साहब जी के भी वचन ऐसे आते हैं, वो भागां वाली जगह वो भागां वाला कहा है जिथे गुरसिखां दे चरण परसे जाते हैं, सतसंगत रूप में बैठा जाता है, आया जीव आया कि गुरसिखां की सेवा की जाती है। भाई गुरदास साहब ने सेवा को बड़ी सुंदर तरजीह दी है। कदे उन्हों की बाणी पढ़न वाले वीरां ने कवित पढ़े होण, वो कहते हैं है गुरु के प्यारिओ कि गुरसिखां की सेवा ऐसी है जिवें कोई 5 वार गंगा के घाट से जाके इशनान करने वाले इशनानी नूं महात्म लगता है। प्रागराज तीर्थ हिंदुस्तान का प्रसिद्ध तीर्थ है। जे कोई प्रागराज तीर्थ से जाके 5 वारी स्नान करके कहे कि मैं गंगा का स्नान किया है, मैं प्रागराज तीर्थ का स्नान किया है, जिन्ना उस इशनानी नूं महात्म लगता है उन्ना उस गुरसिख प्यारे नूं महात्म लगता है। जे आए हुए घर च गुरसिखां नूं पानी पिया देवे भी गुरु के प्यारिया तू मेरे घर में आया है ते ठंडा जल छको जीव आया नूं। इन्ना वड्डा महात्म भाई गुरदास साहब जी ने अपनी बाण च प्याल दिता है। 5 बार गंग जाए बार 5 प्राग नहाए तैसा पुन एक गुर, और सिख पानी पिलाए गण। सिख नूं पानी पियाउण दा एडा वड्डा महात्म है। सिख को पिलाए पानी भाव कर कुर खेत, असवमेध जग फल सिख को जिवाए कर। आए हुए सिख भुखे लंगर छका देना, कहते इन्ना वड्डा महात्म है। सो सिख को पिलाए पानी भाव कर कुर खेत, असवमेध जग फल सिख को जिवाए कर। जिवें वड्डे भारी जग कीते जांदे सी पुराने समय के अंदर, कहते जिन्ना वड्डा असवमेध जग करन वालियां नूं पुन्न लगदा है जी, एक गुरु का सिख घर विच आ जावे ते लंगर छका देना, एडा वड्डा महात्म है। जिन्ना असमेध जग करन वाले नूं ये वड्डा भारी पुन्न लगदा है। भाई गुरदास साहब जी तीसरी तुक जगे ख्याल दिंदे ने, जैसे 7 मंदिर कंचन के ओसार दीने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। 7 मकान सोने दे बना के दान करने वाले दानी नूं जिन्ना फल लगता है, सोने दे मकान दान करने जिन्ना उस दानी नूं महात्म लगता है। भाई गुरदास साहब जी कहते इन्ना महात्म उस गुरु के सिख नूं लगता है जिहड़ा सिख गुरु ग्रंथ साहब दे एक शब्द की संख्या भी किसी नूं शुद्धता नाल पढ़न दी सिक्ख्या दे दिंदा है। एक शब्द भी सिखा देना गुरबाणी का एडा वड्डा महात्म है। चौथी तो कुछ भाई गुरदास साहब जी कहते जैसे 20 बार दर्शन साध किया काहू, तैसा पुन सिख को चाप पग सुआएगा। 20 बार किसी ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन करने का जिन्ना महात्म है, उन्ना महात्म पुन उस मनुख नूं लगता है जेड़ा मनुख आए हुए गुरसिखां दी मुट्ठी चापी करता है। गुरु के प्यारिओ तुसी दूरों चल के थके टुटे आए हो, लियाओ तुहाडी मैं चरण चापी कर देवां। एडा वड्डा महात्म है कि गुरसिखां दी सेवा गुरु के प्यारियां दी सेवा जिन्हां घरां विच है। सतगुरु कहते हैं वो घर वसदे रसदे ते वो घर भागां वाले हन, वो सुंदर घर हन जिहड़े गुरु की सतसंगत के रूप में जुड़ते हैं, जिथे गुरु के दीवान साईदे ने, जिथे गुरबाणी का पाठ है, जिथे गुरु की बाणी का नितनेम है, जिथे कीर्तन है, जिथे गुरमुख दीआं विचारां ने। सतगुरु कहते हैं वो ही चंगे घर हैं। बाकी भावें हजूर का यह भी दृष्टांत ऐसा भी आया है जिथे कदे गुरु की याद में कोई जुड़न वाला नहीं, कदे जपजी साहब का पाठ नहीं करना, किसी ने शाम वेले रहरास का पाठ नहीं करना। 5 बाणियां तो हुण भागां वाला सिख करने वाला रह गया है। भागां वाला सिख होवेगा तो 5 बाणियां का नित्यनेम करता होवेगा, नहीं तो करीब हुण जपजी साहब का भी चेता भुल गया है। अमृत वेला ही नहीं रहा तो बाणी किसी ने पढ़नी है। रात सौना समय नाल नहीं, दिने उठना समय नाल नहीं, विहारां दे विच लगे हाँ, कोई भागां वाला होवेगा जिहड़ा गुरु की याद विच जुड़दा होवेगा।
सतगुरु ने गुरबाणी च ऐसा ख्याल दिता कि वचन फरमाए भगत रसना द्वारा। भगत कबीर साहब जी के श्लोकां च वचन आउंदे ने, जिन्हां घरां च कदे गुरु की बाणी का नितनेम कदे पाठ नहीं, जिन्हां घरां च कदे सतसंगत नहीं जुड़दी, कदे गुरु का जस गैण नहीं हुंदा, कदे खंड पाठ का प्रवाह नहीं चलना, कदे तुर की बाणी का प्रवाह नहीं चलना, कदे सतसंगत नहीं जुड़नी, कदे कथा कीर्तन नहीं होना, उन्हां घरां नूं भगत जी कहंदे भावें किड्डा भी आली शान घर क्यों ना होवे, भावें सुंदर महल बने होण, ਐਉਂ जानो जिवें मुर्दे फूकण वालियां मड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਐਉਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜਹ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸਹਿ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੂਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ का सिमरन, गुरु की याद ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के बचन, भाई हेमा बड़ा गरीब सिख गुरु अर्जन साहब जी का। सतगुरु ਉਹਦੇ ਘਰੇ रात ठहरे पहुँचे और रात बतीत की सिख ने, जिन्हें जोगा सी बड़ी सेवा की। दिन चढ़िया गुरु अर्जन साहब अगे तुरन लगे ने, हथ जोड़ के सिख ने बेनती की, दाता जिन्नी सेवा मैनूं करनी चाहिए सी मैं कर नहीं सकिया, मैं गरीब सिख हाँ, जिन्नी सेवा करनी चाहिए सी मैथों हो नहीं सके। तुसीं सुंदर महिला च निवास करने वाले गरीब नवाज ते मैं कखां दी झोंपड़ी च सारी रात तुहानूं इत्थे रखिया, सच्चे पातशाह मैं गरीब जो होया। सतगुरां ने घुट के छाती नाल ला के आख्या, भाई हेमिया गुरु नानक दा सिख कदे गरीब नहीं हुंदा। और सतगुरु कहने को तो राजा सारी संसार का, जिहदा हिरदा गुरु की याद जुड़िया होया है, जिहदा मन रज गया तृप्ति दे सहत हो गया, तो राजा है। सतगुरां ने दो शब्द गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भाई हेमे नूं संबोधन करके गुरु अर्जन साहब जी ने उपदेश बख्शिश किया सी। पहला शब्द जैतसी राग दी वार दी पौड़ी है, बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पात ना आदरो उद्यान परमिन्ना, मित्र ना इष्टन रूपहीन किछ साक ना सिन्ना, राजा सगली श्रेष्ठ का हर नाम मन भिन्ना, तिसकी धूड़ मन उधरै प्रभ होए सो प्रसन्न। दूसरा शब्द सतगुरु ने सूही राग विच फरमाया, भली सुहावी छापरी जामह गुण गाए, कित ही काम ना धौल हार जित हार बिसराए। बड़े बड़े धौलर मकान सतगुरु कहते किस अर्थ ने जे प्रभु की याद विच कोई जुड़न वाला ही नहीं, पर सतगुरु कहणगे वो भली छपरी है, भागां वाली जगह है जिथे गुरु की याद जुड़न का यह समा बनिया ते सतसंगत होई है। वो थां सतगुरु कहणगे भागां वाला है। अज भी उत्थे बने हुए सुंदर अस्थान, उतों दीआं दलीजां ते लोग नतमस्तक होण वास्ते आउंदे ने, जिथे भाई हेमे दी कखां दी छपरी सी। सतगुरु गरीब नवाज का ऐसा बिरध है, वो गरीबां नूं नवाजण वाला है ते माड़ियां नूं गल नाल लाउण वाला है। भाई लालो दी कखां दी झोंपड़ी च निवास कीता, मत भागो दी परवाह ही नहीं कीती। सो उस भाई लालो नूं छाती नाल ला के कहा सी, नीचा है अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियों तिथे नदर तेरी बख्शीस। पुराने युगों की जे गाथा भी पढ़ के वेख लीए तो द्वापर युग की कहानी भी इस गल नाल मेल खावेगी। और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी ऐसा प्रमाण उस समय का दिता गया है। चक्रवर्ती पातशाह सदाउण वाला दुर्योधन, कौरवां दा पांडवां दा झगड़ा होया, 17 दिन लगातार यतन भगवान कृष्ण जी करते रहे ये झगड़ा निपटा दिता जाए। और दुर्योधन नूं आख्या कोई इलाका 5 पिंड इन्हां विचारियां नूं दे दे, अपनी जिंदगी बसर कर लैणगे। उसने आख्या तुसीं 5 पिंड कहीं जमीन ते सूई दा नक्का लाइए, जिन्नी उहनूं मिट्टी लगदी उन्नी मिट्टी देण नूं भी तैयार नहीं। जदों भगवान कृष्ण जी समझौते वास्ते गए, सामने बैठा सी चक्रवर्ती पातशाह दुर्योधन। मन च ख्याल किया भगवान आ रहे ने, उठ के खड़ा होया
लोग कहेंगे उठ के खलो गया भगवान मैं चक्रवर्ती पातशाह हाँ। ये ना उठ के खलोता तो लोग कहेंगे भगवान आ रहे सी इन्हें उठ के सत्कार नहीं किया है। होवे ना तो हाथी खाना वेखण वास्ते चला गया है। भगवान आए थे वो अपने दासी के पुत्र बिदर के घरे जा पहुंचे। भाई भगत कबीर साहब जी ने ये सारा गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी प्रमाण दिता है। वो कहते ने राजन कौन तुम्हारे आवे